स्टूडेंट माई सेल्फ ममता कापरी। इससे पहले वीडियो में लेसन 4 में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जिसका इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मैटर इनटू ग्रुप्स। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 42 निकालिए, वो आज फिल करवाया जाएगा। पेज नंबर 42 निकालिए और फिल कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट 118 different types of what? Element, molecule, mixture, compound. तो आंसर इज एलिमेंट। एलिमेंट पे टिक लगाइए ए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर? ऑप्शंस है ए वाटर, बी एयर, सी साउंड, डी फ्रूट्स। तो आंसर इज सी साउंड। थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन इज A. Option is grouping things as living and non-living. B. Grouping living things on the basis of common properties. C. Grouping non-living things on the basis of common properties. D. Grouping all living things or non-living on the basis of common properties. So answer is D. That is grouping all things living or non-living on the basis of common properties. Now next question is 4. Classification is useful because first option है it makes things look neat and tidy. Second option है it makes studying the properties of things much easier. Third, C, it help us in the kitchen. D, it help us in the school library. So answer is B, it makes study the properties of things much easier. Okay. Now question number 5. Which property is common to all matter? Options है first A, that is A, matter take up space and has no mass. B, matter can be seen and has some mass. C, matter take up space and has mass. D, matter take up space and may or may not have mass. तो आंसर इज सी में टिक लगाइए, जो कि इसका है मैटर टेक अप स्पेस एंड हैज मास। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट शेप बट नॉट डिफिनिट वॉल्यूम इज। ऑप्शंस है फर्स्ट ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस एंड डी नन ऑफ दीज। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7. ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज। ऑप्शंस है ए फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर वीक, बी मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, सी मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस, डी मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। तो आंसर इज बी, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8. Gases possess neither fixed volume nor fixed shape because. Options है A, molecules are loosely packed, B, molecular motion is fast, C, there is very little force between molecules, D, it is difficult to make the molecules move away from each other. The answer is A, molecules are loosely packed. ठीक है, ये हो चुका है। Now very short answer question. Now page number 43, question B, very short answer question. Okay, first question है, name one natural material we get from tree. मतलब एक नेचुरल मटेरियल का नाम बताना है जो कि हम लोग को ट्री से मिलता है। तो आंसर होगा वुड, WOOD। सेकेंड, all matter take up space. What is the name given to the amount of space something take up? तो answer is volume, VOLUME। थर्ड क्वेश्चन है, what is the smallest particle of an element called? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? तो आंसर इज एटम, ATOM। what is the smallest particle of a compound? 4. What is the smallest particle of a compound called? कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द फॉलोइंग लिस्ट
सर्किल द वन विच इज़ नॉट मैटर, इसमें से कौन मैटर नहीं है, तो आंसर इज फीलिंग्स, फीलिंग्स को सर्किल कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड, तो आंसर है क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, classification. Now next question, classification is done only for living things, true या false, तो आंसर false होगा। Silk clothes has dash which cotton clothes does not, silk clothes has sign, आंसर होगा sign, SHINE। Now next question 9, which state of matter can easily change its shape and volume, कौन जो है वो अपना शेप और वॉल्यूम चेंज कर लेता है आराम से, तो आंसर इज गैसेज, GASES। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आर ऑल लिक्विड मिक्सेबल विथ वाटर, जितने भी लिक्विड होते हैं वो वाटर के साथ मिक्सेबल हो जाते हैं, नो। 11 क्वेश्चन नंबर, नाउ वन गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, आंसर इज ऑक्सीजन, OXYGEN। Question 12, if density of a solid greater than density of water, the solid will sink in water. Okay. Now 13, what is a substance through which light can pass partially but cannot see through it called translucent, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट। ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब आप लोग ये डिफिनीशन लिखिए, आप लोग कॉपी निकालिए लेसन 4 का, सॉर्टिंग मैटर इनटू ग्रुप्स, नाम लिखिए, चैप्टर नेम लिखिए और डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। लेसन 1 एंड 1, 2, 3 का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे क्योंकि वो हम करवा चुके हैं और आप लोग याद भी कर चुके होंगे। चलिए अब डिफिनीशन लिखिए। फर्स्ट है मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या लिखना है, एनीथिंग दैट हैज ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज़ जो जगह छेकता हो और जिसमें मास होता हो उसको बोलते हैं मैटर। वॉल्यूम, सेकेंड है वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्युपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्पेस के द्वारा जो अमाउंट होता है, जिसके द्वारा वो जगह लेता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। नाउ थर्ड है क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। मतलब मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, ग्रुप में करना, एक सामान को एक ग्रुप में करना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मतलब वो मटेरियल जिससे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं आर पार, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओपेक, दोज मटेरियल थ्रू विच we cannot see at all are called opaque। मतलब वो मटेरियल जिससे हम लोग सही से नहीं देख पाते हैं, मतलब आर पार नहीं देख पाए, मतलब देख ही नहीं पाए, उसको बोलते हैं ओपेक मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट, दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। मतलब ट्रांसल्यूसेंट का मतलब वो हुआ वो मटेरियल जिससे हम लोग पारदर्शी के तौर पर देखें, मतलब धुंधला धुंधला टाइप, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो ये आप लोग लिख लिए, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्युपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम। क्लासिफिकेशन, मेथड METHOD है, ये कंफ्यूज मत करना, METHOD, मेथड ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स विथ
सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, टी है ये, टुगेदर, TOGETHER. Density, mass per unit volume of a substance. Next है transparent, those material through which we can see clearly are called transparent. Opaque, those material through which we cannot see at all are called opaque. Translucent, those material through which we cannot see clearly are called translucent. ये आप लोग फिर कॉपी में उतार लीजिएगा, जो बुक में फिल करवाए हैं पेज नंबर 42, पेज नंबर 43, 42 का ए, 43 का बी, आप लोग बुक में फिल करके याद कर लीजिएगा। जितना भी फिल करवाएं सब याद करते जाइए, आप लोग का टेस्ट होगा जिससे पूछा जाएगा। ओके, दैट्स फॉर टुडे, बाय।